بازو کو جھٹک کر اپنے قریب کیا اور اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھا کر کہنے لگا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس سے سچائی گلوانے کا۔ وہ اسے ہرساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ ڈر سے سب بتا دے۔ عورت ذات انتہائی خودغرض اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ وہ اپنے مطلب کی خاطر اپنے بچے کی زندگی تک داؤ پر لگا سکتی ہے، بغیر کسی غرض کے۔ وہ اپنے سکے رشتوں سے محبت نہیں کرتی، اور تم مجھے ایک غیر کے بچے سے محبت کرنے کے قصے سنا رہی ہو۔ تم بھی تو عورت ہی ہو، کیسے مان لو کہ تم اپنے گھر بسانے کے بجائے، اپنے بچہ پیدا کرنے کے بجائے وہاں بغیر کسی غرض اور رشتے کے میرا گھر سنبھال رہی تھی اور میرا بچہ پال رہی تھی۔ اپنی باتوں سے تم کسی اور سے کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ حوریہ کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑ کر کہنے لگا۔ انگلیوں کے دباؤ سے حوریہ کی کلائی جلنے لگی اور دل کانپنے لگا۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آہل نے مزید ایک قدم کے فاصلے کو کم کیا اور اس سے کہنے لگا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے ساری سچائی بتا دو، ہو سکتا ہے تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ آہل کے انداز غلساز نے حوریہ کو شدید غصے سے دوچار کیا۔ بار بار اس کا چھونا اسے سلکھا رہا تھا۔ حوریہ نے ایک بار پھر خود کو آہل کی گرفت سے آزاد کیا اور غصے سے کہنے لگی، بہت شوق ہے نا آپ کو سچ سننے کا، تو سنیں۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتاتی ہوں جس کا آئینہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ حوریہ نے اپنے کندھے سے ڈھلکتے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور آہل کے سینے پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی کو رکھ کر کہنے لگی، آپ ایک انتہائی خبتی اور پاگل انسان ہیں، آنکھوں والے اندھے اور کانوں والے بہرے ہیں، جسے نہ تو سچ دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی سنائی۔ اپنے کام اور پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک بے گناہ لڑکی کو قید کرنے والے ظالم انسان ہیں۔ بے یقینی، بے اعتباری کی دلدل میں استر دسے ہوئے ہیں کہ مجرم اور معصوم کی پہچان بھول چکے ہیں۔ ایک فوجی ہو کر محبت جیسے جذبے سے انکاری ہیں۔ جب آپ بغیر کسی رشتے اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر اور فیملی سے سالوں دور رہ کر دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، تو میری محبت اور اسرار کو کیوں گناہ سمجھ رہے ہیں؟ عورت ذات جتنی بھی ناقابل اعتبار صحیح لیکن خالص ممتا سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سب کیا۔ اپنے دل کی بڑاس نکال کر حوریہ اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور آخر نے اسے کچھ سخت سخت کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر سیم کا نمبر دیکھ کر اس نے ہاں سیم بولو۔ سیم کا نام سن کر حوریہ نے بولنا چاہا، لیکن آخر نے فوراً اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ کی پشت آہل کی سینے سے لگی تھی اور وہ ان دونوں ہاتھوں سے آہل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہل کی اگلی بات نے اس کو ساکھ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم سیم؟ ایسے کیسے بے ہوش ہو سکتا ہے وہ؟ ایک لحظ کو رک کر سیم کی بات سنی اور کہا، میں ابھی اسپتال آ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ فون بند کر جیسے ہی آہل نے حوریہ کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، کون ہے اسپتال میں؟ حامد تو ٹھیک ہے نا؟ کون بے ہوش ہوا ہے، پلیز بتائیں۔ ایک بار پھر وہ پہلی والی کمزور سی حوریہ بن چکی تھی، جس کی ہمت یہ سوچ کر ہی ختم ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا تکلیف میں ہے۔ اس کے سوالات کو نظر انداز کیے آہل باہر کی طرف بھاگا، لیکن حوریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے حامد کے پاس لے جائیں۔ کیا ہوا ہے اسے بتائیں مجھے۔ بس ایک لفظ اور نہیں، پہلے ہی تمہاری وجہ سے وہ اسپتال پہنچ گیا ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو یہیں اس کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ ایک کہہ کر روتی بلکتی حوریہ کو گھر میں اکیلا بند کر کے چلا گیا۔ آہل کے جانے کے بعد حوریہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اونچا اونچا روتے ہوئے چہلا رہی تھی اور حامد کو پکار رہی تھی، لیکن اس کی چیخ و پکار اسی کمرے میں گونج کر واپس آ رہی تھی۔ رو تو وہ سب تب سے رہی تھی جب سے آہل سے سامنا ہوا تھا، لیکن اس رونے میں وہ شدت اور تڑپ نہیں تھی جو اس وقت اس کی چیخوں میں تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا اور نظریں اس وجود کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں جس کی خاطر اس نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تھی۔ رو رو کے جب ہچکیاں بند ہوئی تو اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ ساری نماز اس نے بیٹھ کر ادا کی کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت مفقود ہو گئی تھی۔ حامد کی بیماری کی خبر نے ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ حوریہ رو رو کے اللہ سے گریزداری کر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو اپنے حفظ امان میں رکھ، میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے، رحم کر میرے مالک اور مجھے میرے بچے سے ملا دے، یا اللہ پلیز مجھے اس کیس سے باہر نکال دے، اس پتھر دل شخص کے دل میں رحم ڈال دے۔ اور بار بار اللہ سے رحم کی دعا مانگ رہی تھی اور حامد کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، لیکن چین پھر بھی نہ آ رہا تھا جب تک وہ حامد کو سینے سے نہ لگاتی۔ اس تڑپتی بلکتی ممتا نے بے قرار ہی رہنا تھا۔ اس بچے سے رشتہ ہی ایسا جڑ گیا تھا، دل کا رشتہ۔ وہ لوگ جن سے دل کے رشتے جڑ جائیں، ان کی تکلیف ایسے ہی تڑپاتی ہے جیسے اس وقت حوریہ تڑپ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہی تھی کہ جانے بغیر کہ اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پا گئی ہیں۔
आहिर जैसे ही हसपताल के कमरे में पहुंचा, सामने बेड पर बुखार से निडाल हामिद को देखकर इसका दिल कट कर सा गया। इसने हामिद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था, मगर फिर भी इसकी तकलीफ पर तड़प रहा था। यही तो उनकी कोशिश होती है कि अपनों की तकलीफ जान बन आती है। कर्नल साहब इसके सर पर ठंडियां पट्टियां कर रहे थे और सेम पाँव में गीला कपड़ा फेर रहा था। बाबा क्या हुए इससे जाए, कैसे इसकी इतनी हालत खराब होगी? कर्नल साहब ने एक गुस्से भरी नजर इसे देखा और बगैर कुछ किए वापस हामिद की तरफ मतवजह हो गई। कर्नल साहब के अंदाजे पर आंखों चूमते हुए सैम की तरफ मतवजह हुआ, जो नाराजगी से इसे ही देख रहा था। सैम, तुम कुछ बोलोगे? भैया, हामिद भाभी को मिस कर रहा है और इस वजह से इसे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है हामिद को खौफ की वजह से बुखार हो गया है। खौफ की वजह से? किस चीज का खौफ? आहिल को सही मायने में झटका लगा था कि इतने छोटा सा बच्चा किस चीज के खौफ व परेशानी में मतला है। भैया, जो बच्चा पैदा होने के बाद से एक दिन भी माँ से दूर ना हुआ हो, इस बच्चे को अगर कोई ये कहे कि वो अपनी माँ से नहीं मिलेगा तो क्या वो बच्चा खौफजदा नहीं होगा? सैम ने कदरे रूखेपन से कहा और राहुल को सारी बात समझ आ गई। वो जो थोड़ी देर पहले हामिद की बीमारी का कसूरवार हुर्रिया को ठहरा रहा था, इस लम्हे सबकी नजर में खुद को जिम्मेदार पा रहा था। सैम से इसे कह दो कि जैसे कि मेरी बेटी को घर से लेके गया है, वैसे ही इसे अभी और इसी वक्त वापस ले आए, वरना मुझे दोबारा मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ने जगह और वक्त का लिहाज करते हुए अपने गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, आप किसी की खातिर मुझसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आहल ने सदमे से कहा, वो कोई गैर नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरे घर की इज्जत, मेरे वारिस की माँ है और मुझे बिल्कुल वैसी ही अजीज है जैसे कि मेरी सकी औलाद। मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसका क्या कसूर है जो तुम इसे रातों रात कहीं छोड़ आए हो। मुझे इस पर पूरा यकीन है कि वो बच्ची कुछ गलत कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आज रात से पहले वो मुझे यहाँ चाहिए। भैया, प्लीज भाभी को ले आए, हामिद की खातिर, हम सब की खातिर, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। हामिद की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सैम ने अपनी नाराजगी एक तरफ रखकर आखिर से दरख्वास्त करते हुए कहा। तभी हामिद बेहोशी में रोने लगा और मम्मा मम्मा पुकारने लगा। जैसे ही इसके बुखार की शिद्दत में कुछ कमी आती, वो रो रो कर फिर से अपनी हालत खराब कर देता। इसकी हालत को देखते हुए कुछ सोचकर आहल अस्पताल से बाहर आ गया। आहिर एक बार फिर इंतहाई बेबसी और गुस्से की हालत में हुर्रिया के पास आया। इसे देखते ही हुर्रिया अपनी जगह से उठी और तेजी से इसके पास गई और कहने लगी, हामिद कैसा है, क्या हुआ है इसे, प्लीज मुझे इसके पास ले जाएं। हुर्रिया ने आहल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। आहल ने इसके बंद हाथों को पकड़ा और कदरे जबत से कहा, मैं तुम्हें इसी के पास ले जाने आया हूँ, रोते हुए तुम्हें पुकार रहा है। हाय मेरा बच्चा। आहल की बात सुनकर हुर्रिया के होंठ हिले आवाज तो अचानक से इसकी गिरफ्त सख्त होने की वजह से गले में ही कहीं दब गई। आहल की तेवर देखकर हुर्रिया को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। लेकिन तुम्हें इससे पहले मुझसे निकाह करना होगा। दिल ही दुखाते हो जो कभी मिल जाते हो। आखिर की बात ने हुर्रिया को हैरानियों के समंदर में निकाल दिया। वो कुछ भी स्टेप कर सकती थी, लेकिन इस इंसान के मुंह से अपने लिए पेशकश नहीं। इसने आहल के हाथों से अपने हाथ निकालते हुआ, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आप निकाह? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझसे निकाह क्यों नहीं कर सकती? आज तक तो बगैर निकाह के मेरी बीवी बनकर रह रही थी, तो अब निकाह करके बीवी बनने की क्या तकलीफ है? नहीं, कभी नहीं, मुझे नहीं आपकी बीवी बनना। आई जस्ट हेट यू। हुर्रिया के इनकार ने आहल को बुरी तरह सुलखाया। ऐसे शिद्दत हद तक का इस सासुआ में भी तुम्हारे इश्क में पागल होकर निकाह का पैगाम नहीं दे रहा, बल्कि अपनी बेटी की खातिर मजबूर होकर ये निकाह कर रहा हूँ। इसे तुम्हारी जरूरत हो, मैं तुम्हें इसे यहाँ से बाहर नहीं लेकर डाल सकता। क्यों नहीं लेकर जा सकते? आप पहले भी तो मैं इधर ही रहती रही हूँ। पहले किसी को न तुम्हारी सच्चाई भी तो पता नहीं थी। मैं तुम पर इत्तबार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊँ और तुम अपने साथियों से रब्ता करो। इकरार अज़म तो किया नहीं तुमने, और यहाँ से बाहर जाने के बाद तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए खुला छोड़ सकता हूँ। वाहिद निकाह ही ऐसे जरिए है जिसमें तुम्हें अपना पाबंद कर सकता हूँ, ताकि तुम अपने साथियों से मिल ना सको। देखिए, मेरे कोई साथी नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ मुझे हामिद के पास ले जाएं, इसे मेरी ज़रूरत है। और ये ने एक बार फिर आहल को एतबार दिलाने की कोशिश की। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरी फैमिली की इज्जत और ज़िंदगी का मामले है। तुमने इन्हें बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों इंसानियत पर यकीन उठ गया है आपका? क्यों मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई देती है आपको? ये बेतबारी भी तुम्हारी जैसी किसी औरत की सौंपी हुई है। आहल के लहजे में किसी बेवफा के दिए गए धोखे का दुख बढ़ रहा था। इसके अंजिल चेहरे पर हाय व ज़बूर आंखें। आहल ने हुर्रिया की आंखों पर अपना हाथ का अंगूठा फेरते हुए इंतहाई सख्ती से कहा, और ये आंखें, ये तो जादू कर देती हैं, झूठ बोलती हैं ये आंखें। अरसा हो गए मेजर आहल रजा ने इनसे कलाम करना छोड़ दिया। हुर्रिया के चेहरे से नजरें हटाते कहा, इस केस से बाहर जाने और हमसे मिलने का बस एक ही तरीका है, या तो मेरा प्रपोज कबूल करो
या फिर इधर ही एड़ियाँ रगड़ती रगड़ती मर जाओ। और बस यही ममता के हाथों मजबूर होकर इसने हार मान ली। अपने बेटे से मिलने और उसकी जिंदगी की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। निकाहनामे पर दस्तखत करके खुद को हमेशा के लिए इस बेतबार शख्स को की कैद में दे दिया था। इतना तो इससे बदतर था कि इस बेतबार संगदिल के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरेगी, लेकिन अपने बेटे की हाथ और वो सब तकलीफें उठाने को तैयार थी। गाड़ी जानी पहचाने रास्ते पर दौड़ रही थी और अंदर बैठे दोनों नफीस एकदम खामोश, अपनी सोचों में उलझे हुए। दोनों की जिंदगी नापसंदीदा गैर मुतफ़िका पड़ाव आया था, जिसे कबूल करने पर दोनों मजबूर थे, और वो मजबूरी हामिद था। आहिल हुरिया को अस्पताल ले जाने के बजाय सीधा घर ले आया। पोश में गाड़ी खड़ते करते हुए कहा, 5 मिनट में तुम्हारे पास, जल्दी से जाओ, अपना हुलिया ठीक करके आओ, हमें अभी अस्पताल जाना है। हुरिया को तैयार होने कहकर खुद मोबाइल पर मसरूफ हो गया। हुरिया ने फौरन हुक्म तामील की और जल्दी जल्दी मुंह पर धोकर कपड़े बदल कर आई, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर गुजरी क़यामत के आसार सबत थे। बेतहाशा रोने की वजह से इसकी आंखें सूज चुकी थी और नाक सुर हो चुकी थी। गाड़ी अब अस्पताल के रास्तों पर दौड़ रही थी। हामिद से मिलने की खुशी और इसकी बीमारी की तकलीफ ने इसे अपने सारे दर्द भुला दिए। याद था तो बस इतना कि वो अब अपने बेटे को देख सकेगी, इसे प्यार कर सकेगी, बस इतने में ही खुश थी। जिंदगी से ज्यादा की ख्वाहिश तो कभी इसने की ही नहीं थी। लेकिन जिंदगी कब हमारी ख्वाहिशात की ताबे है, वो तो हमें वही अता करती है तो हमारी तकदीर में लिखा होता है। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही हुरिया ने हामिद को देखा, जो रोने में मशगूल था, तो खुद पर बांधे जबत के बंधन टूट गए और वह बगैर किसी की परवाह किए हामिद को गले लगाकर खूब रोई। आहल बस खामोशी से हुरिया के बहते आंसू देख रहा था और सोच रहा था, कितने आंसू बहाती है ये लड़की, बस मौका चाहिए रोने का। तभी कन्नर साहब की आवाज ने इसकी सोचों पर बांधा, जो कि हुरिया से मुखातिब थे। बस कर जाओ बेटा, वो ठीक हो जाएगा। कन्नर साहब ने हुरिया के सर पर हाथ रखते, बाबा ये कैसे हो गया, ये तो इतना सेहतमंद हो, फिर अचानक कैसे इतना बीमार हो गया। हुरिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हामिद को गोद में लिटाकर वो इसे आहिस्ता सा थपक रही थी। माँ के पास जाते ही वो परसुकून सा हो गया था। बेटा छोटा बच्चा है वो, और छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अब आप आगे हैं ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर भी बाबा ये इतना बीमार हो गया, देखें तो ऐसे भी कभी होता है कि मेरे इतना सेहतमंद बच्चा कैसे नचुट सा गया है। हुरिया ने हामिद के हाथ को प्यार से सुलाते हुए कहा, जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। माँ बाप की जुदाई बच्चों की हालत ऐसे ही कर देती है, क्यों की थी आप इसे छोड़कर। कर्नल साहब ने शिकवा किया। इन्हें हुरिया से बस यही शिकायत थी कि अगर आहिल और इसका झगड़ा हुआ था तो वो कम से कम इन्हें तो बताती, ऐसे घर छोड़ कर तो न जाती। कर्नल साहब के शिकवा सुनते ही हुरिया के थमे आंसू फिर से बहने लगे और रोते हुए बोलने लगी, मैं अपनी मर्जी से आपको या हामिद को छोड़कर नहीं गई थी। इन्होंने मुझे घर से जाने को कहा था, हामिद से मिलने तक नहीं दिया। ये बस मेरा रब जानता है कि मैं कैसे इतनी देर तक अपने बच्चे से दूर रही। हुर्रिया ने सारा इल्जाम आहल पर धरते हुए कहा। आहल तो इसकी चालाकी पर हैरान रह गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो बाबा के सामने ये सब कहेगी। बेटा घर छोड़ने से पहले एक बार मुझे तो बताया होता। मैं कान खींच कर इस गधे की अकल ठिकाने लगा था। अभी भी देर नहीं हुई, आप अब भी इनकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं। बाबा ये मुझे खुद छोड़कर आए थे, इन्होंने मुझे आपसे मिलने तक नहीं दिया। हुर्रिया ने आहल की तरफ देखते बगैर कहा, जो मुसलसल से घूरने में मसरूफ था। घूर क्या रहे हो बच्ची को, कुछ गलती ही कह रही हो। कौन सी ऐसी मियाँ बीवी हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती, तो क्या सारे यूं अपनी बीवियों को घर से निकाल देते हैं। एक बात अच्छी तरह से नशीन कर लो, घर मेरा है और ये मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद मेरे घर से मेरी बेटी को निकालने की जरूरत भी मत करना। कर्नल साहब को आहल पर बहुत गुस्सा था, जो हुर्रिया की बातों से मजीद बढ़ गया था। अरे मुझे तो ये सोच कर शर्म आ रही कि मेरे बेटे ऐसा नीच काम किया। इंतहाई कमज़ोर मर्द होते हैं जो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं करते। मर्द तो औरतों के मजबूत साहिबान होते हैं, इनकी इसकी पनाहगाह होते हैं। आहिर के लिए कर्नल साहब की डांट सुनकर हुर्रिया को बहुत खुशी हुई। एकदम बहुत कुछ हल्का फुल्का लगने लगा। ये एहसास ही बहुत खुशकिन था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं, इसके साथ देने के लिए बहुत मुखलिस लोग इसके पास हैं। इसने दिल ही दिल में रब का ढेरों शुक्र अदा किया और झुक कर हामिद के माथे पर प्यार किया, जो हुर्रिया की गोद में बरसकून होकर सो रहा था। भैया बाबा को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। मैं हमेशा आपको अपना आइडियल माना है, लेकिन आपने भाभी के साथ जो किया इसने मुझे बहुत मायूस किया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आगे कभी आपको भाभी से कोई शिकायत हो तो इसे कुछ करने से पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बहन को संभाल लूँगा। सैम ने कदर नीम लहजे में कहा और हुर्रिया ने मशकूर होकर सैम से कहा, थैंक यू सैम, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास बाप और भाई जैसे मजबूत सहारे हैं जो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
हुरिया सेम के साथ साथ आहिल को भी सुना रही थी, और आहिल तो वो बस हुरिया के अंदाज व अल्फाज पर दंग रह गया और सवाए ज़ब्त के कुछ नहीं कर सकता था। पर बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, पर फिक्र न करो, मैं जो आहिर रजा पर काटना बहुत अच्छे से जानता है। वो हशर कनोगा ना याद रखोगी, अभी तो मुझे जानती नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया ना, तो चुनटी की तरह मसल कर रख दूंगा। आहिर हुरिया को यह सब कहने की हसरत लिए खड़ा था। हुरिया को लगा कि इसकी सोचें मजीद ज़हरखंद हो चुकी हैं। ये सब जब आहिल की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बाबा से कहने लगा, बाबा रात होने लगी है, अब आप और सेम घर जाएं, हम दोनों इधर हैं हमद के पास। आहिल के कहने पर कर्नल साहब हुरिया को तसल्ली देकर और हामिद का ख्याल रखने का कहकर चले गए। इनके जाते ही आहिल हुरिया के पास आया और कहने लगा, ये सब क्या था? तुम इस सब में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके बहुत गलत कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से बाबा को ज़रा भी तकलीफ पहुंची ना, तो बस कर दें अब। बुरी नाहल की बात काटते हो, कहा आपकी फैमिली मेरी सब कुछ है, इन्हें तकलीफ देने के बारे में सोचना भी गुनाह है मेरे लिए। मैं क्यों बाबा को तकलीफ दूंगी? और रही बात इस सब की जो अभी हुआ है, तो वो अब रोज़ होगा। जब जब आप मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, मैं बाबा को बताऊंगी आपने मेरे साथ जितना बुरा करना था कर लिया। इतनी बड़ी मेरी गलती नहीं थी जितने ज़्यादा आपने मुझे सजा दे चुके हैं, और इस सब के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब मैं मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, इनका जवाब पत्थर से दूंगी। मुझे मुजरम समझने की गलती तो आप कर ही चुके हैं, आप कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिएगा। आवल तो हुरिया को रोती धोती कमज़ोर सी लड़की से एकदम शेरनी बनने देखा हैरान हो गया। वो जो थोड़ी देर पहले इसके रहम करम पे थी, अब अचानक से इस पर जंग करने को तैयार थी। पल पर रूप बदलती ये लड़की इसकी टेंशन में इजाफे का बायस बनती जा रही थी। इसका हर रूप जानलेवा था। हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। हमने रूंढा है ज़माने के फरहानों का गुरूर। किस बात पे इतना उड़ रही हो? मैंने तुम्हें केस से बाहर निकाला है, शक के दायरे से नहीं। मेरी नज़र में तुम अब भी एक छोटी मकार धोखेबाज लड़की हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेगा ना, वो तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आपकी नज़र की परवाह कैसे है? आहिल की आंखों में आंखें डालकर शान बेनियाजी से कहा, खुद परस्ती में रहो तो मिट्टी से भी खेलती हो, ना परस्ती पर आ जाओ तो चांद को भी नज़रअंदाज कर दो। आप मुझे क्या समझते हैं? इससे मुझे कोई सरोकार है? मुझे मेरा घर और बच्चा दो, मुझे मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। आप करते रहें अपनी कोशिशें, ढूंढते रहें सबूत, लेकिन एक दिन लिख कर रख लें, मेरी क़यामत तक कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं। जो कुछ मैंने आपको बताया यही सच है, क़यामत तक यही सच रहेगा। हुरी ने आहल को सुनाने के बाद हमद को बिस्तर पर लटाया, वजू करके नमाज पढ़ने लगी। आहल हमद के पास लेटकर हुरिया को नमाज पढ़ते हुए देखने लगा और सोचने लगा, क्या वाकई ये सच कह रही है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान जाऊं कि एक औरत होकर इतनी बेगर्ज हो, बगैर किसी सिले के मेरे बच्चे पर मोहब्बतें लुटाई। इसकी खुद की सच्ची माँ ने इसके ख्याल नहीं किया। जब वो माँ होकर इसे कुर्बान कर सकती है, तो ये गैर होकर कैसे इसके साथ मुखलिस हो सकती है? जब वो मेरी बीवी होकर भी मुझसे वफा न कर सकी, मेरी मोहब्बतों की कदर न की, मुझे धोखा दिया, तो ये कैसे मुमकिन है कि बगैर किसी रिश्ते के मेरी वफादार हो? या अल्लाह प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से निकाल, मुझे सच दिखा। अगर ये मासूम है तो इसकी बेगुनाही मुझ पर वाज़िया कर। अगर ये कोई दुख है तो मुझे मेरे ख़ानदान को इससे महफूज रख। मैं एक बार फिर से धोखा खाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इस बार मेरा पूरा ख़ानदान निपट में आ रहा है। आखिरी इन सोच में गौन तक हुरिया नमाज पढ़ के आगे कहने लगी, उठे इधर से, आप इधर काउच पर बैठ जाएं। हुरिया कहने की देर थी कि हल्का जबर चटक गया। क्यों उठूं मैं इधर से? क्यों? ये मेरी जगह है। पूरा दमाद जवाब आया, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा बेटा। आहल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कब इनकारी हूँ? कबूल तो आप नहीं कर रहे मेरी हकीकत को, वो हकीकत जो झूठ और फ्रेम में लिपटी है। नहीं, वो हकीकत जो अभी कुछ देर पहले वाक़ई हुई है। आपने मुझसे निकाह करे वाले के मेरे झूठ को सच में बदल दिया है। अब मुझसे जरह करें या मेरे हक से इनकार होना जुल्म होगा। पहले मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं था, लेकिन अब सारे एतराद आप खुद मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी जगह पर तशरीफ़ लेकर जाएं। हुरिया इंतहाई ठंडे लहजे में अपनी अहमियत और दोनों के दरमियान मौजूद ताल्लुक की हकीकत इस पर वाज़िया करके इसे सुलगा चुकी थी। आहल अपनी जगह से उठ कर ऐसे कहने लगा, जिस हकीकत तो इतना उड़ रही हो ना, वो कभी भी बदल सकती है। जिस तरह दो बोलों से तुम्हारी हसीयत बदली है ना, वैसे ही दो बोलों तुम्हें ज़मीन पर लाने के लिए काफ़ी हैं। बस एक बार मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर तुम्हें ठीक किए आप जाएं सबूत ढूंढने, और सबूत मिलने पर जो सजा देंगे मैं उफ तक नहीं करूँगी। लेकिन इससे पहले आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। बेशक शक के दायरे में रहकर जितना आपने मुझे टॉर्चर करना था कर चुकी हो। नहीं, इतना कानून तो मुझे भी पता है कि शक की बिना पर ना तो किसी को कैद किए जा सकते हैं और ना ही सजा दी जा सकती है। हमसे मत उलझो कि हम अब सरापे सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी। इस बात को मुकम्मल करके हुरिया आहिल की छोटी
छोड़ी हुई जगह पर लेट गई और हमद का सर उठाकर अपने बाजू पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता दबदबाने लगी। और आहिर लाजवाब होकर सोफे पर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे लाजवाब किया था। वो बदले में इसे एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका, क्योंकि वो जानता था कि वो जो भी कह रही है हर बहर सच है। अगले दिन डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमद को डिस्चार्ज कर दिया। घर आकर बस हुरिया से चिपक कर गया, मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहीं भी नहीं, मैं तो इधर ही हूँ आपके पास। मम्मा भला आप ऐसे अपने बेबी को छोड़कर कहीं जा सकती हैं क्या? हुरिया ने हमद को गोद में बिठाते हुए कहा, आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई थी? एक और शिकायत थी, मम्मा की जान आप सो रही थी तो क्या हुआ? आप मुझे उठा देती, मुझे आपके बगैर रहना नहीं अच्छा लगता। हमद बेटा आप अब बड़े हो गए हो, स्कूल भी जाते हो, अगर मम्मा थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाएं तो ऐसे नहीं रोते। मम्मा को इतना मिस नहीं करते, देखा आप कैसे बीमार हो गए थे। मम्मा मैं मिस नहीं कर रहा था, लेकिन आप खुद याद आ रही थी, इतना याद ना आया करे ना। हमद ने अपनी बेबसी बताई और हुरिया का दिल इतने छोटे बच्चे की सच्ची मोहब्बत से लबरेज हो गया। देखो तो सही इस बच्चे को कितना प्यारा है ये, कैसे ना मैं इसकी मासूमियत, अपनी जवानी, अपनी ख्वाब कुर्बान करूं इसके लिए। तुमसे तो क्या मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। हुरिया अपनी सोचों में आहिर से मुखातिब थी, मामा पापा अच्छे नहीं हैं। हुरिया हमद ने हुरिया को सोचों से निकाला। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमद ने हैरानगी से पूछा। मामा ने मुझे डांटा था, आपने इन्हें तंग किया होगा ना। मामा बस थोड़ा सा किया। हमद अपनी गलती मान कर कहने लगा, मामा वो मुझे कह रहे थे कि वो मुझे आपके पास नहीं जाने देंगे। याद आने पर एक और शिकायत देगी आई। हमद की आदत थी, वो अपनी हर बात हुरिया से कहता था और हुरिया निहायत वजह से इसकी सारी बातें सुनती थी। स्कूल से आने के बाद जब तक अपनी एक एक बात ना बता लेता इसे हिलने नहीं देता। आधा दिन तो इसका हमसे बातें करने, इसके सवालात के जवाब देने में ही गुजर जाता। हमद की बातें सुनकर हुरिया को बहुत तकलीफ हुई, आहल पर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन वो हमद के सामने इसका इजहार करके इसे बाप के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। तभी इसे समझाते हुए वह कहने लगी, बेटा पापा से आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा इनके पास रहो। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर हमारा दिल चाहता है कि वो हर वक्त हमारे पास रहें। जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं आप मेरे पास रहो, ऐसे ही मेरी गोद में बैठे रहो और मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूं, आपसे ढेरों सारी बातें करूं। मोरे ने इसे जोर से गले लगाते हुए कहा, मामा मेरा भी दिल करता है आप हमेशा मेरे पास रहो, मुझसे कभी दूर ना हो। अब अगर आप दूर गई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हमद ने हुरिया के गाल पर प्यार करते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हुरिया ने हमद के खौफ खत्म करने के लिए कहा। हमद को नॉर्मल करने के लिए हुरिया इसके खूब लाड उठा रही थी और हमद के लिए इसके इत्तेफाकिया अक्ल को जहर लग रहे थे। वो बार बार हुरिया के रवैये को जांच करता परखता और इसे सच्चा समझकर चला जाता। इसकी सच्चाई पर ऐसा यकीन तो आ गया था, लेकिन इसे बस यही बात हजम नहीं हो रही थी कि वो एक सौतेली माँ होकर कैसे हमद के साथ मुखलिस हो सकती है। चाह कर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हुरिया को इसने कुछ भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गया था कि इसके घर वाले और बच्चे की जान हुरिया में बसती है। हमद के सेहतियाब होते ही हुरिया ने खुद को घर के कामों में मसरूफ और सेम की मंगनी और निकाह की तैयारी में मसरूफ कर लिया था, जो कि हमद की बीमारी की वजह से मतलूब हो गई थी। आहिर ने वह बहुत ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। सुबह वो घर से जाता तो शाम को लौटता। जिंदगी जैसे एकदम नॉर्मल हो गई थी। हुरिया बगैर किसी डर और खौफ की जिंदगी गुजार रही थी। बाबा और सेम से मोहब्बतें सिमट कर बहुत हक से हमद पर लटा रही थी। और कहीं बेचैन था तो वो था मेजर आहिर रजा। ना तो वो हुरिया के लिए अपने दिल को साफ कर पाता था और ना ही हमद के करीब हो पाता। हमद की देहानत और हसासियत के अंदाजे से गुजरे दिनों से हो गया था। और ना तो खुद ये भूल रहा था कि इसके पापा ने इसकी मामा को गंदा कहा है, और ना ही इसे भूलने दे रहा था। वो बातों बातों में कई बार से जिता भी चुका था और आहल से सॉरी बुलवाने के साथ साथ हुरिया के पास रहने के वादा भी ले चुका था। हमद बेटा आप क्या कर रहे हो? आज जुम्मा था और आखिर घर पर फारग था। हुर्रिया ताखुर को नजरअंदाज किए रोज जोर और शोर से इतवार को होने वाले निकाह की तैयारी में मसरूफ थी और आखिर हमद से ताल्लुकात बेहतर बनाने में। मामा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, मुख्तसर जवाब आया, जिसे सुनकर आहल जी भरकर बदमजा हुआ। मामा का चमचा हर वक्त मामा मामा की रट लगाए रखता है और ये सब सोच ही सके हमद के मुंह पर कहने की गलती नहीं कर सकता था। हम आपकी मामा ने कहा आपको फूल तोड़ने के लिए। हमद से बात बढ़ाने की खातिर आहल ने हुर्रिया को ही मौजूद जिक्र बनाया। इतना तो वो जान ही चुका था कि इसको छोटा सा बेटा अपनी मामा से मोहब्बत नहीं इश्क करता है और आशिक से बात करने के लिए महबूब का जिक्र से बढ़कर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। नहीं, मामा ने तो नहीं कहा, वो तो मुझे फूल तोड़ने से रोकती हैं। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई फूल तोड़े। फौरन माँ की तरफदारी की और फूलों से हुर्रिया की मोहब्बत
से तो आहिल भी अच्छी तरह से आगाह था। इनके लाइन की खूबसूरती हुर्री की मेहनत और दिलचस्पी का नतीजा थी। अपनी निगरानी में रहकर वो पौधों की काट छांट करवाती थी। हुर्री की निगरानी करते करते वो इसकी बहुत सारी आदतों से वाकिफ हो चुका था और खूबियों का मुतरफ भी। तो फिर आप क्यों फूल तोड़ रहे हो? आज मम्मा ने ब्लैक ड्रेस पहना है ना? अच्छे, लेकिन ब्लैक ड्रेस का फूल से क्या कनेक्शन? आहल ने ना समझी से पूछा। वो आज टीवी पर एक खूबसूरत लड़की मम्मा से थोड़ी कम प्यारी थी। इसने ब्लैक ड्रेस भी पहना हुआ था और इधर बालों में फूल लगाया था। मैंने भी मम्मा से कहा है कि वो भी ब्लैक ड्रेस पहने और फूल लगाएं, इसलिए मैं ये फूल मम्मा को गिफ्ट करूंगा और फिर मम्मा इतनी प्यारी लगेंगी, सबसे प्यारी। हमद के लहजे में हुर्रिया के लिए मोहब्बत बोल रही थी। फिर कुछ याद आने पर आहल से पूछने लगा, क्या आप भी अब भी मम्मा की गंदी लगती है? हमद के सवाल ने एक लम्हे के लिए आहल के दिल की धड़कन बढ़ा दी। अपनी तरफ जवाब के लिए मुंतजिर नजरों से देखते हमद को देखकर आहल ने कहा, नहीं, अब आपकी मम्मा मुझे बुरी नहीं लगती। आहल के जवाब ने हमद के चेहरे की रौनक बढ़ा दी और उनके साथ साथ आहल ने भी खुद से भी एतराफ़ किया था। आई लव यू पापा, क्या मेरे साथ मम्मा को फूल फूल देने चलेंगे? ओके चलें, आपकी मम्मा को फूल दे आते हैं। आहल ने जैसे ही जाने के लिए हमद का हाथ थामा, साथ वाले घर से 5 साल साइम आ गया था हमद को बुलाने। साइम की माँ मिसेस मलिक की हुर्रिया के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और अक्सर दोनों में बच्चों को लेकर लड़ाई भी हो चुकी थी। हमद ने आहिल को फूल दिया और साइम के साथ खेलने चला गया। हामिद खुद तो चला गया मगर आहिल को इम्तिहान में डाल गया। जिस इंसान को आप बारहा ठुकराओ फिर इसकी तरह अपनी अना को ढूंढ कर कदम बढ़ाना आसान नहीं है। तो यही मुश्किल आहल को भी पेश आ रही थी। वो कुछ देर खड़े रहने के बाद गुलाब का फूल लिए घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। सामने ही हुर्रिया और सेम बैठे थे। मेज पर कुछ कपड़े रखे थे जिन पर जोर व शोर से तबसरा जारी था। अचानक ही सेम की नजर आहल पर पड़ी और कहने लगा, आए भैया, इधर आए। और ये हाथ में क्या है लिया हुआ है? ये फूल? जी भैया, लेकिन किसके लिए? तुम्हारी भाभी के लिए। आहल की बात सुनकर इसे मुकम्मल नजरअंदाज कपड़े देखती हुर्रिया को हैरत का शदीद झटका लगा। इसे उम्मीद नहीं थी कि आहल भी कभी इसके लिए फूल लाएगा। अच्छे से ज्यादा इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दिनों से वो आहिल के रवैयों और नजरों में तब्दीली महसूस कर रही थी, लेकिन अपना वहम जानकर नजरअंदाज कर गई और इसे लेकर खुद को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं करना चाहती थी। इसने बहुत कोशिश की कि वो आंखें उठाकर आहल को देखे या इस फूल पर नजरें डाले, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पलकें उठाने से इनकारी होगी। आय से पहले से कभी अपनी पलकें इतनी भारी नहीं लगी। दिल धड़कता तो पहले ही था, लेकिन इस लम्हे इसकी धड़कने में एक गैर मामूली शोर बरपा था। ओह, तो आप भाभी के लिए फूल लाए हैं? फिर इन्हें दे भी दे या रूम में जाकर खुद इनके बालों में लगाने का इरादा है? सेम ने आहल को छेड़ते हुए कहा। आहल का खबर हुर्रिया के लिए फूल लाना इसे भी खुशी से दो चार कर गया। वैसे भी जब से इसके निकाह की बात चली थी तब से वो कुछ ज्यादा ही शो हो गया था। नहीं, ये मैं नहीं लाया, मुझे ये सब नहीं पसंद, ये हमद लाया है हुर्रिया के लिए। वो खुद देने आ रहा था, लेकिन साइम इसे बुलाने आ गया और वो फूल मुझे देने का बोलकर चला गया। आहिल को खुद अपनी एहसासियात बहुत अजीब लग रही थी। सेम और हुर्रिया पर इसकी दिल की हालत इश्कार न हो, इसे जल्दी से अपनी सफाई में कहने लगा, मुंतजर से तेरी इनायत के कुछ तो किया, चलो तबाही से। हुर्रिया का खुशफहमी दिल लम्हों में चकनाचूर हो गया। अभी तो वो ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाई थी कि इसके अरमान लापरवाहियों की भीड़ चढ़ गए। आंखें पहले शर्म व हया की वजह से उठने से इनकारी थी और अब बेरुखी की मौत मरे जज्बात के गम को छुपाने की खातिर जुगी हुई थी। हुर्रिया ने बहुत मुश्किलों से आंसुओं पर पाबंदी बांधी, क्योंकि वो इसके सामने आंसू बहाकर अपने जज्बों की तौहीन नहीं करना चाहती थी। क्यों हो तो इतने जालिम, क्या हो जाता जो मेरा मान रख लेते, इस रिश्ते का ख्याल कर लेते जो हमारे दरमियान है। कुछ तो रिश्तों के तकाज़ों को समझो। हमारे दरमियान मौजूद ताल्लुक तुम्हें मुझे यूं बेमोल करने की इजाज़त तो नहीं देता। मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्या मैं इसे जानती नहीं हूँ? ये तो पत्थर है, मेरे जज्बों की आँच इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती सिवाय मुझे जलाकर राख करने के। लेकिन मुझे जल जल कर राख होना मंजूर है, मगर अपनी अना और इज्जत नफ्स की तौहीन नहीं। मेरे जज्बात मेरे तक महदूद रहेंगे, मैं इन्हें तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। दिल का कान टूटना तो सही है, अना टूट गई तो जी नहीं पाऊंगी। मैं औरत साध हूँ, कमज़ोर व कमतर सही, कि मुझे ज़ेब नहीं देता तेरे आगे करना। तू आदम है कि इब्ने आदम है जो आला तहकीक लाया, जिसे फरिश्तों ने पूछा मगर ये कहाँ लिखा है? तू मुझसे मोतबर है, मैं भी तो तेरा ही हिस्सा हूँ।
तेरी पसली से निकली हूँ, गिरद मुकम्मल होता अगर तू ही सब कुछ होता, तो रह लेता खुद अकेले खुदा मेरी तहलीक क्यों करता। मैं भी तो कुछ हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ हूँ, हवा हूँ कि बिनते हवा, जो तेरी पासबा बनी, तेरी साबा बनी, तेरी राज के ला, मेरी हमजार कलाई, तू ये कैसे मुमकिन है, भला क्यों कर मुमकिन है मैं तुम कमतर कहलाऊं, कभी अपने वजूद कभी कोई हिस्सा कमतर हो सकता है, भला चांद और सूरज में कोई बदतर हो सकता है, मैं लाख नाजुक व कमज़ोर सही मगर मैं तुझसे ही हूँ, अना मुझ में भी रखी है भला की रखी है, कुछ मान मेरा भी है खुददार मैं भी हूँ भला की हूँ, बेमौल होकर झुक नहीं सकती, तेरी अना से मिट नहीं सकती, तू भी तो मेरे जैसा है, मेरा कमज़ोर वजूद भी तेरे वजूद का हिस्सा है। होरिया को देख के साथ साथ अपनी कमजोरी पर गुस्सा भी आ गया कि क्यों वो इतनी नरम दिल थी, कि इसके इतने बुरे रवैये के बाद भी इसकी तरफ दिल खुश फहमी में हो गया, किसी अनाई के मुंतजिर इसकी बेबसी में चहचहाट भरे गुस्से में बदल गई। तभी हमद मिट्टी में लथड़ा हुआ रोता हुआ आया, वापस आया जैसे देखकर हाल में बैठी थी नफीस हैरान हो गए। होरिया को तो बाकायदा सदमा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो इससे नहला धुला कर तैयार किया था और अब सब मिल लिया मेट करके वापस आ गया था। हमद को दोबारा नहलाने का सोच के ही हुर्रियत को खौफ आ रहा था। हमद ये सब क्या है बेटा, किसने किया है ये आपकी ये हालत। हुर्रियत ने पूछा। मामा वो साइम की मामा ने मुझे धक्का दिया, माली अंकल पौधों को पानी दे रहे थे, बस इधर गिर गया। हमद का रोते हुए कहा क्या धक्का, लेकिन क्यों, आपने क्या किया था। धक्के को सुनकर ही हुर्रियत को कुछ होने लगा, जैसे बच्चे को वो डांटती तक नहीं थी, इसे कोई धक्का दे, इसे कहाँ मंजूर था। कुछ नहीं किया, बस बेबी कार्ड में सो रही थी मैं, बस इसे किस करने लगा था। आंटी ने देखा दी और कहा इसके बेबी को तंग ना करो, अपनी मम्मा से कहो वो मुझे अपनी बेबी ला कर दें। हम मम्मा आंटी मुझे बेबी नहीं देती, आप मुझे मेरी बेबी ला कर दें, इनकी बेबी से भी प्यारी, बिल्कुल आपकी जैसी। सैम ने रोते हुए कहा क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए धक्का दिया। आप इधर बैठो, मैं अभी आती हूँ। हिम्मत कैसी हुई इनकी मेरे बच्चे को धक्का देने की। हम तो वहीं छोड़कर हुर्रियत मिसेस मल के घर चली गई। अब है नहीं मिसेस मल की, सैम ने हंसते हुए कहा। इसे देखकर हमद भी रोना भूलकर चुप कर गया। क्या मतलब, आहिल ने इसे हंसते देखकर पूछा। बस अभी समझ आएगा, अभी थोड़ी देर में यहाँ वर्ल्ड कप वार लग रहे हैं, कोई आपकी लहते जिगर को डांट दे तो हुर्रियत भाभी बुरा मान जाती हैं। जब तक इन्हें एक की 10 नसनाए सुकून नहीं आता, आई तो मामला ही और है। आपकी शहजादा मार खा के आया है, पता नहीं क्या करेंगी। जाए इन्हें वापस ले आए, कहीं सर ही ना फाड़ दें मिसेस मलिक। आहिल अभी गेट के पास ही पहुंचा था कि हुर्रियत की जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी, जो गुस्से से मिसेस मलिक को कह रही थी शर्म आनी चाहिए आपको, हिम्मत कैसे हुई आपको मेरे बेटे को धक्के देने की, अगर इसे कुछ हो जाता तो। हुआ तो कुछ नहीं ना, किसने कहा था भेजो इसे मेरे घर, जब जब मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ उठाने आ जाते हैं। मिसेस मलिक ने भी दो बदो जवाब दिया, खुद नहीं आया वो, ये आपका बेटा आया था इसे बुलाने, और क्या हो जाता अगर जरा सा खेल लेता वो आपकी बेटी के साथ। इसकी खेलने के लिए नहीं पैदा की मैंने, अपनी बेटी अगर इतनी परवाह है तो खुद पैदा करके दो। मिसेस मलिक ने हुर्रियत कहा हाँ कर लूंगी खुद पैदा, जब मेरा दिल चाहेगा, आपको मशवरा देने की जरूरत नहीं, आप अपना काम। हुर्रियत घर चलो। आहिल ने हुर्रियत का हाथ खींचकर जबरदस्ती ले जाते हुए कहा। घर में आते ही वो हुर्रियत से कहने लगा ये सब क्या है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरी बीवी यूं जाहलों की तरह लोगों के घर जाकर लड़ाई करती फिरे। आहिल की बात सुनकर तो हुर्रियत को और गुस्सा आया, अगली पिछली की कसर निकालते हुए कहने लगी ओह तो आपको अब याद आया है कि आपकी एक बीवी भी है। जिस तरह बीवी याद आ गई वैसे ये भी याद कर लें कि एक बेटा भी है जो इस हालत में घर आया है। अगर इससे कुछ हो जाता तो इसकी कोई हड्डी टूट जाती। माँ कभी भी जाहिल पढ़ी लिखी नहीं होती, माँ हमेशा माँ होती है, और जब जब कोई मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी करेगा तो मैं इससे ऐसे ही झगड़ा करूंगी। हुर्रियत आहिल पर अपनी ब्रास निकालकर हमद का हाथ पकड़कर वहां से चली गई, और आहिल को बरसों पहले कैप्टन साहब से कही अपनी माँ याद आ गई। कौन है ऐसी औरत जो इसके लिए दुनिया से लड़ जाए। हुर्रियत ने हमद के लिए इसके सके बाप से भी टकरा गई थी, बस इसी बात ने आहिल से वो फैसला करवा लिया जिसके लिए इसकी दिल व दिमाग में जंग जारी थी, जिसके साथ साथ दिमाग भी हुर्रियत की मोहब्बत पर ईमान ले आया था। बस अब हुर्रियत के सामने इकरार करने की देर थी। आज सलीम का निकाह था जो बहरियत सर अंजाम पा गया। हमद को सुलाने के बाद हुर्रियत अजीब कश्मकश में बैठी थी, बार बार मोबाइल उठाकर आहिल के भेजे गए मैसेज को पढ़ती और हर बार दिल की धड़कन बढ़ जाती। कल से इसे आहिल के बदले अंदाजे मुश्किल में डाले हुए थे, इसकी मुश्किलों समझने दिल को बार बार धड़क रहे थे, बगावत में मजबूर कर रहे थे। आहिल न सिर्फ इसके निकाह का जोड़ा लाया था बल्कि इसने मबलूस हुर्रियत को सराया भी था, और अब मैसेज करके इसे टेरेस पर बुला रहा था। अपने आप को एक नजर शीशे में देखने के बाद हुर्रियत टेरेस की तरफ बढ़ गई जहां आहिल इसका मुंतजिर था। कोई काम था आपको, आपने बुलाया था। टेरेस पर जाकर हुर्रियत ने आहिल से पूछा। बगैर किसी काम के भी आपको नहीं बुला सकता क्या। हुर्रियत के सवाल के जवाब में आहिल ने सवाल किया।
آپ نے ایسا رشتہ بنایا ہی کب ہے جس میں بغیر کسی کام کے ملاقات ہو؟ نہ چاہتے ہوئے شکوہ کیا، اگر اب میں ایسا رشتہ بنانا چاہوں تو حوریہ کے شکوے سن کر آہل نے سوال کے جیسے سن کر حوریہ نظر جگی نظروں سے حوریہ نے آہل کی آواز سنی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، تم سے معافی مانگوں، تمہارا شکریہ ادا کروں یا پھر تم سے اظہار محبت کروں؟ آخری بات پر ایک لمحے کو حوریہ نے نظریں اٹھائی، آخر کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر واپس چکا لی۔ حوریہ، تمہارا بیان میری زندگی میں آنا بہت غیر متوقع اور عجیب تھا۔ ہم فوجیوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اپنی فیملی کو خدا کے سپرد کر کے مہینوں گھر سے دور رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے میں کہیں ایسے لمحات آتے ہیں جو دوسرے لوگ انہیں جیتے ہیں اور ہم بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں انہیں جینے کا موقع ملے۔ میں جب جب کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتا تو اپنے بچے کو دیکھنے، اسے پیار کرنے کے لیے تڑپ جاتا تھا۔ جب جب کسی فیملی کو ساتھ بیٹھے دیکھتا تو یہی خواہش ہوتی کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ ہر فوجی کی گھر سے دور رہ کر دل سے بس یہی ایک دعا نکلتی ہے کہ بس اس کی فیملی حفاظت سے رہے، انہیں کچھ نہ ہو۔ ایسے میں جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں رہ رہا ہے تو یقین مانو یہ بات جسم سے روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم میری فیملی ہے اور جب بات فیملی پر آ جائے تو پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بس اس لیے میں تمہارے ساتھ اتنی سختی سے پیش آیا۔ ہم فوجیوں کو جتنے دعائیں دینے والے ہوتے ہیں اتنے ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، ہم بہت جلد ہر کسی کا بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے میرا تم پر شک کرنا فطری تھا، لیکن بہت جلد میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی چیز پیش قدمی سے روک رہی تھی اور وہ تھا حمد کے لیے انسیکیورٹی تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ تم ہم سے استقرار محبت کرتی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، بہت جلد یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی عورت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اپنی سوری راز سے محبت کرے، یہی چیز ہر بار میرے بڑھتے قدموں کو روک دیتی تھی۔ آج کل کے اس نفسیاتی دور کے نفسی کے دور میں تم جیسی محبتوں سے گندی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ اس دنیا کی ساری عورتیں بری نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا۔ میں سچے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ پلیز پہلے ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ الجھے ہوئے تو تلخوں کی حد سے گزر گئے، ٹوٹے تو کرچوں کی سے حد سے گزر گئے، نفرت ہوئی تو بے انتہا ہوئی، چاہتوں کی حد سے گزر گئے۔ آہی نے حوریہ کی ہاتھوں کو پکڑ کر گولڈ کی سفید نگوں سے مزین خوبصورت کنگن بناتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اس کی ماموں کی ایسی چوڑیاں لا کے دو جو ہر ڈریس کے ساتھ میچ کر جائیں۔ آہل حوریہ کو کنگن پہنا کر اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پہنائے ہوئے کنگن سے سجے ہوئے تھے۔ تم بھی کچھ کہو نا۔ آہل نے کب سے خاموش کھڑی حوریہ کو مخاطب کیا، میں کیا کہوں، سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا ہے۔ حوریہ نے حیاء سے بوجھل لہجے میں کہا، ویسے مسز ملک کا مشورہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ آہل نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اس کے فک چہرے کو دیکھ کر کہہ لگایا۔ خوشیاں دونوں کے در پر دستک دے رہی تھی اور وہ مسکرا کر ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دور آسمان پر چمکتے چاند ستارے ان کی دائمی خوشی کے لیے دعا گو تھے۔ ختم شد۔ کیسی لگی آپ کو یہ ناول کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔